نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیز بچوں اور بچیوں، آپ لوگوں کے اسکول میں میری یہ دوسری مرتبہ آنے کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندہ، شریف بندہ، ذمہ دار انسان بندہ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں پیدا ہو گئے، اسکول میں پڑھ لیے، ڈگریاں لے لیے، کالج میں پڑھ لیے، ڈگریاں لے لیے، یونیورسٹیز میں پڑھ لیے، ڈگریاں لے لیے، پھر اچھا جاب لگ گیا، شادی کر لیے، بچے ہو گئے، اور اس طریقے سے ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ خدا کی قسم یہ ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں، 1 2 3 4 10 100 200 500 1000 2000 نہیں، 18,000 مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام کو لینا چاہتا تھا ان مخلوقات سے لے سکتا تھا، ہے نہیں؟ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کچھ تو میرا مقصد ہوگا نا۔ صرف MS گرامر میں پڑھ لیا یہی مقصد تو نہیں۔ قرآن خانی کر لیا، قرآن کریم پڑھ لیا، ناظرہ سیکھ لیا، یہ مقصد تو نہیں۔ بہترین قسم کے جاب ڈھونڈ کر کے نوکری کر لیا، یہ تو مقصد نہیں۔ شادی بیاہ کر لیا، بچے پیدا کرنا، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہے۔ کھانا پینا، ڈگریاں حاصل کرنا، نکاح شادی بیاہ کرنا، گھر بار بنانا، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد قرآن کریم میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ ہمارے پیدا کرنے کے مقصد ہے۔ کیوں ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آ کر کے کھاتا لگانا نہیں ہے، بلڈنگز بنانا نہیں ہے، بہترین قسم کے جاب، زیادہ پیسے کمانے کے دوسرے ملکوں میں جا کر کے جاب، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ضروریات زندگی کہنا کرنا، اچھا پوزیشن لا، اچھا کام کرنا، اچھے سے اچھے پیسے کمانا، کرنا چاہیے۔ یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے آخرت، سمجھ رہے نا؟ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، نہیں؟ پیدا ہی ہم مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے، وہاں سے سفر شروع کیے تھے۔ ہم تو مسافر ہیں۔ خود بھی دنیا کا انکا غریب اور عابر السبیل، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دنیا مسافر کے طریقے سے گزارو یا اجنبی کے طریقے سے گزارو، تو یہ دنیا میں ہم مسافر بن کر کے آئے ہیں۔
हमारे जिंदगी के सफर के 7 मरहले। कितने स्टॉपेज है? 7 स्टॉपेज है। ये सफर करते हुए जा रहे हैं और जाएंगे। 7 स्टॉपेज याद रखो, काम की बात है। जिंदगी के सफर का पहला स्टॉपेज आलमे अरवा। क्या है? आलमे अरवा, जहां सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो पैदा होगा, सारे इंसान के रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने रखा था। और वहां अल्लाह ताला ने कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने, हम सब ने, आपने, मैंने और हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने, दुनिया के सारे इंसान बिला मजहब व मिल्लत, चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जितने भी लोग थे, सारे रूहों ने एक साथ मिलकर के कहा था, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब। कुरान कह रहा है ना, कुरान कह रहा है, भला क्यों नहीं, आप ही हमारा रब। ये सफर का पहला स्टेप है। फिर वहां से सफर करें। अच्छा, मैं बोलता हूँ, बस ये समझाना मकसद है, हम क्या है, कहां से चले थे, कहां है। वहां से फिर हम क्या करें, सफर करके बाप के सुल्ब में आए। बाप के सुल्ब में आए, फिर बाप के सुल्ब से, ये दूसरा स्टॉपेज, बाप के सुल्ब से फिर माँ के रहम में, तीसरा स्टॉपेज, माँ के रहम में रहे 9 महीने तक। वहां से फिर पैदा होकर के, सफर होकर के हमारा सफर शुरू हुआ, दुनिया में पैदा हो गए। यहाँ पर दुनिया में कितने साल रहे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। ये चौथा स्टॉपेज। फिर मरना है, मर करके फिर कब्र में जाना है, ये छठा स्टॉपेज है, ठीक है ना। 5वां, फिर कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है, छठा स्टॉपेज है ये, ठीक है ना। आखिरी स्टॉपेज, आखिरी सफर का आखिरी मरहला हमारा क्या है? मैदान महशर से जन्नत या जहन्नम। मैदान महशर से जन्नत या जहन्नम, वहां पर हमारे लिए तय होगा हम कौन है, क्या है, दुनिया में हम क्यों आए, दुनिया में आकर के हमने क्या किया। हमें अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था, हमने उसे पूरा किया या नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मुसलमान हर एक दाई, हर मुसलमान दाई, दावत देने वाला, इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने वाला, ये हर एक के जिम्मा अल्लाह ताला ने लगा दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक चरवाहा है। चरवाहा किसको बोलते हैं? बकरियों को हाँकते हैं, जानवरों को हाँकते हैं, जानवर इधर उधर ना चले जाए। इसी तरीके से हर आदमी को एक चरवाहा करार दिया। आप अपने घर के चरवाहे हैं, आपके वाले साहब आप सबके चरवाहे, इस बस्ती के जो सदर है बस्ती का चरवाहा है, यहाँ के जो एमएलए है इस इलाके का चरवाहा है, यहाँ के जो एमपी है इस डिस्ट्रिक्ट का चरवाहा है, यहाँ का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का चरवाहा है, ठीक है ना। तो हर एक को जिम्मा लगा दिया अल्लाह ताला, तुम से हर एक चरवाहा है और इसके बारे में कयामत के दिन पूछ होगी। तो इस उम्मत का हर फर्द, इस उम्मत का हर फर्द, आप ये ना सोचे मैं तो नमाज पढ़ ले रहा हूँ, 5 वक्त जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ ले रहा हूँ, माशाअल्लाह, रमजान में रोजा भी रख ले रहा हूँ, जिंदगी में एक मरतबा हज भी कर लिया है, करूंगा, उमरा भी कर ले रहा हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ, मेरा तो पार्क है, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रम बंदा हूँ। ये अगर सोच हमारे अंदर है तो गलत है, गलत है ये सोच। ये कुरान करीम की आयत से मालूम होता है।
ये सारे चीजों के साथ साथ ये भी होना है, खुद नेक बनना है, दूसरों को नेक बनने की तालीम करना है, खुद बुराइयों से बचना है, दूसरों को बुराइयों से बचाना है। समझ रहे ना? इस उम्मत की ये बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ा काम है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छे काम करना, बुराइयों से रोकना, इस उम्मत के हर फर्द पर और इस उम्मत की जो इब्तिदा हुई है, उम्मत मोहम्मदिया, इसकी अगर इब्तिदा देखे, इसकी हिस्ट्री देखे, तो इसकी हिस्ट्री तालीम से शुरू हुआ है, तालीम से शुरू हुआ है। आप खुश नसीब है, आप स्कूल में आकर के तालीम हासिल कर, आप जैसे आप उम्र के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं करने पा रहे, नहीं कर रहे या नहीं करने पा रहे, कुछ वजह नहीं करने पा रहे, लेकिन आप खुश नसीब है, आपने उस मिशन को, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन को जारी रखा है। इस उम्मत की इब्तिदा ही तालीम से हुआ है। कैसा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिस वक्त नबी बनाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबी बनाया गया, सबसे पहली वही जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, उसमें तालीम का जिक्र है। इक़रा, पढ़िए, पढ़ना, पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद अव्वलीन और आखिरीन का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया। लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस दौर में पढ़ने लिखने का ज्यादा रिवाज नहीं था। आजकल जगह जगह पर स्कूल है ना, उस दौर में ऐसा नहीं था। मक्का में एक भी स्कूल नहीं था, पूरा जज़ीरतुल अरब में एक भी स्कूल नहीं था, पूरा जज़ीरतुल अरब में। जब लोग पढ़े लिखे होते थे तो उल्लू के पास जाते थे, जाकर के पढ़ लेते। बाज़ाबता कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बचपना गुजारा, जवानी गुजारी। आप भी पढ़े लिखे नहीं थे। माँ अना बेकारी, आपने फरमाया मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इक़रा, फिर तो फरमाया पढ़िए, मुझे पढ़ना नहीं आता। तीसरी मरतबा फिर कहा पढ़िए, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये हदीस है, हदीस में भी इसका तस्वीर है और इसमें पारे की आयत भी है। जब चौथी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये आयतें सबसे पहले नाज़िल हुई गारे हिरा में। पहाड़ का एक कोख था, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर के आपको नबूवत अता किया, और सबसे पहली वही एजुकेशन से बताई। इस उम्मत की सबसे इम्तियाजी शान है एजुकेशन, पढ़ना लिखना। आदमी पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो वो नाबीना के तरीके से ब्लाइंड, अंधा है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा बीना है, देखने वाला है, और अनपढ़ नाबीना है। हालांकि आँख है उसको, आँख होने के बावजूद वो नाबीना है, वो देख नहीं सकता। आप अच्छे और बुरे में फर्क पैदा कर सकते हैं, वो पैदा नहीं कर सकता, उसको मालूम ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वो लिखाई नहीं है, मालूम ही नहीं है। इसलिए एजुकेशन इस उम्मत के मिशन में से एक बहुत बड़ा मिशन है। एजुकेशन जरूरी है।
एक को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली, ये तो मशहूर हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। क्या हदीस? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना फर्ज है, फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है जी, इल्म का हासिल करना वैसे ही फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, मालदार को हज करना फर्ज है, माँ बाप को देखना उसके ख्याल रखना फर्ज है, बड़ों की इज्जत करना फर्ज है, छोटों पर शफकत करना फर्ज है, वैसे ही इल्म का हासिल करना फर्ज जरूरी है। आप अगर ये कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मैं यतीम था, अनाथ था, या मुझे मेरे घर में बहुत ज्यादा माली बहरान था जिसकी वजह से मैं इल्म नहीं हासिल कर सका, बहाना नहीं चलेगा। इल्म आपको हासिल करना ही है, कैसा भी करो आप। कोई शख्स ये कहे कि मैं काम करने के लिए दूर जाता हूँ इसलिए मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, ये बहाना माना जाएगा? नमाज फर्ज है, पंज वक्त नमाज आपके ऊपर फर्ज है, हर हाल में आपको पढ़ना है। आप अगर बीमार है उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है। अगर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते बैठ करके पढ़िए, बैठ करके भी नहीं पढ़ सकते लेट करके पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ है। कोई शख्स ये कहे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, सुबह में उठने नहीं पाता हूँ, रात को देर से जाग रहा हूँ, इसलिए बदन की नमाज छूट जा रही है, मुझे माफ कर दिया जाए। माफ करेगा? नहीं माफ करेगा ना अल्लाह ताला। तो इसी तरीके से कोई अगर ये बहाना करेंगे मेरे ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैं इल्म नहीं हासिल कर सका, ये कोई आपके रीजन माना नहीं जाएगा। आपके ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, हर हाल में इल्म हासिल करना है। इस उम्मत का ये शेवात है, इस उम्मत की सबसे पहली वही है इल्म के बारे में, तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आपको हर हाल में एजुकेशन हासिल करना ही, इसके जरिए से आप हक और बातिल को पहचान सकते हैं और हक बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बातिल से उसको रोक सकते हैं। अभी मैं पहले कहा था कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हर एक पर फर्ज है। अच्छी बात है दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बुराइयों से रोकना हर एक पर फर्ज है। बुराई क्या है ये मालूम करना यही तो इल्म है ना, अच्छाई क्या है उसको हासिल करना यही इल्म है, तालीम। आपके असतज़ा यही सिखाते हैं, आपके टीचर्स यही आपको सिखाते हैं। अगर ये चीज मालूम नहीं हुआ तो आप में, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, नहीं है। जानवर में हम में कोई फर्क नहीं है, जानवर और हम में फर्क इसलिए है कि वो वेल एजुकेटेड नहीं होते, हम वेल एजुकेटेड है नहीं। एजुकेशन हमारा हक है, हमारा राइट्स। जानवर एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में नहीं जाते है। तो एजुकेशन इस उम्मत का सबसे अव्वली में वही है और सबसे अहम फरीज़ा में से फरीज़ा है, और हमारे लिए जरूरी है कि उसको हासिल करें और इसको पहुंचना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक हदीस, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीख के दूसरों को सिखाए। कुरान सीख
سیکھے دوسروں کو سکھا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے جو احکامات ہیں خود آپ سیکھیے، وہ سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیے. اگر یہ کر لیا تو تم بہتر شخص ہو، نہیں کیا تو اپوزیشن. اگر تم نے یہ کام کیا تو اچھا انسان. قرآن خود سیکھا، قرآن کے احکامات کو خود جانا، معلوم کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا رہے، یہ بہترین شخص ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا، بہترین شخص نہیں، شخص تو ہے ہم، بہترین شخص ہم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ بہترین شخص ہونے کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں. دوسری چیز قرآنی معلومات، یہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دیا ہے. دنیا میں جتنے ایجادات ہو رہے ہیں سب کچھ قرآن کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، سب کچھ قرآن کریم کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. قرآن کریم کو دیکھ کر کے ان کے ایجادات کو آج کیا جا رہا ہے. چھوٹی مثال، پلین بنانے، پلین کس نے بنایا؟ ہاں معلوم ہے نہیں معلوم؟ پلین کس نے بنایا اور اس نے کیسے اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معراج کا واقعہ بیان کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. معراج کا واقعہ، معراج کی رات میں جاگتے ہیں نا، یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا. سائنس ہر ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، قرآن کریم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرتے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی معلوم ہے قرآن کریم کہ جیسے کوئی کتاب دنیا میں نہیں، سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم، سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب قرآن کریم، سب سے زیادہ حفظ یاد کیا جانے والی کتاب قرآن کریم. یہ سب کو معلوم ہے، ان سب کو بھی معلوم ہے. قرآن اگر وہ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی بات اندر اس کا دل تو یہ مانتا ہے قرآن نے جو کہتے ہیں وہ حق ہے، صحیح ہے. 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا. معراج میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ کے آمنے سامنے. تھوڑی دیر میں ہوا ہے، تھوڑی دیر میں. حالانکہ زمین سے لے کر کے صرف چاند تک جائیں گے تو کتنی مسافت ہے؟ 80 دن تک جاتے ہیں، 80 دن چاند جا کر کے پہنچتے. 80 ڈیز کے سفر ہے چاند تک پہنچنے کی. اب سیٹلائٹ تھوڑا سا اور ایڈوانس کیا ہے اور تھوڑے سے کم ہو جاتے تھے. سب سے پہلی مرتبہ 80 ڈیز میں پہنچے تھے، جب چاند میں پہنچے تھے. تو یہ چاند کس میں ہے؟ خلا میں ہے، آسمان میں نہیں ہے. آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. اس میں جانے کے لیے 80 ڈیز کا سفر کرتے. پہلے آسمان میں جانے کے کتنا سفر کرنا ہوگا؟ کتنے لاکھ کلو میٹر ہے، اور وہ اندازہ تو نہیں کر سکتے. کتنے کروڑ کلو میٹر ہے نہیں لگا سکتے اندازہ. وہ لوگ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لگاتے ہیں. یہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7ویں آسمان، پھر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اور گئے. ایسے تو نہیں چلے گئے. کوئی ایسی چیز ہوگی جو تیزی کے ساتھ لے گئی ہوگی، اور وہ چیز زمین میں چلنے سے اتنے تیز نہیں چلتی. وہ زمین و آسمان کے بیچ میں اڑ کر کے جائے، اس میں یہ پاور ہو سکتا ہے.
दिमाग लगाया, सर्च किया और कोशिश करते रहा, कामयाब हो गया। कई टन जहाज कितने सामान को लेकर, कितने मुसाफिरों को लेकर के एक मुल्क से दूसरे मुल्क 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में चले जाते। उन्होंने मामूली सुन्नत पर, हमारे मामूली सुन्नत पर अमल करके आज वो आगे बढ़ रहे। जहां पर वो सर्च करके, अगर वो कुरान करीम को छोड़ कर गया, इसको छोड़ करके सर्च करके, तो जहां वो सालों तक सर्च करके आखिरी नतीजा में पहुंचते हैं, वहां पर सुन्नत रसूल पहले से मौजूद होता है। चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो, साइंस हो, और जितने तरीके और जितने भी मैदान हो, जितने भी मुल्क हो, जितने भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक में सुन्नत रसूल पहले से वहां पे मौजूद होता है। ये कैसे आपको मालूम होगा? जब आपके अंदर तालीम होगी, आप एजुकेशन हासिल कर चुके होंगे, तो आप इन चीजों, इनमें फर्क महसूस कर रहे होंगे। कुरान करीम में सारी चीजें मौजूद है, आपके इलाज मुआलजा से लेकर के आपके रूहानी इलाज तक सारी चीजें मौजूद है। हमने क्या किया? कुरान करीम को बरात खाने की किताब बना के छोड़ दिया। मर जाए कोई, घर में कोई मर जाए तो कुरान खानी करते है नहीं? रमजान आए तो तिलावत करते। कुरान करीम को क्या किया हमने? रमजान में पढ़ने वाली चीज बना करके छोड़ दिया। कसम खा करके बताइए, आज सुबह फजर कितने बच्चे फजर के बाद कुरान खानी करके आए? बताइए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं। और आज किसके लिए नाज़िल हुआ है? हमारे लिए नाज़िल हुआ है, हमारे लिए नाज़िल हुआ है कुरान। कुरान को हम नहीं पढ़ रहे, कुरान को हम नहीं पढ़ रहे, तो कुरान को पढ़ेंगे। कुरान करीम से दिल लगा, कुरान को अपना लीजिए, फिर ये दुनिया आपके हाथों में हो। अगर आपने कुरान को अपना लिया, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दिया, तो दुनिया आपकी कदमों में होगी। कामयाबी, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। सक्सेस के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। सामने वाला हो सकता है देख करके आपको ये कहे कि ये तो हालात का मारा हुआ है इंसान, पैसे नहीं है, घर बार नहीं है, इन चीजों के बारे में वो सोचते होंगे। लेकिन आप दुनिया के सबसे बादशाह इंसान है, हुकूमत ना होते हुए, रुपए पैसे ना होते हुए, माल दौलत ना होते हुए, आप दुनिया के सबसे मालदार इंसान हैं, जिसके पास कुरान है। कुरान ये वो पावर है, इसके अंदर वो पावर है कि इसने मुशरिकीन मक्का के पूरी बस्ती को, मुशरिकीन मक्का पर हिला के छोड़ दिया। एक एक आयत मक्का वालों पर एटम बम के जैसे गिरता। जब एक आयत नाजिल होती थी, मक्का वालों पर एटम बम गिरता था, ऐसा होता था। कहते थे कि इसको हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब आयतें नाजिल हो रही हमारे खिलाफ, हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे माबूदों के खिलाफ, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये कुरान करीम की एक एक आयत मक्का वालों के लिए एटम बम के तरीके से नाजिल होता है। उस किताब को आपके ऊपर, आप खुशनसीब है कि आपके नबी के ऊपर नाजिल हुआ है, उसके जरिए से आपको मिली। तो उस किताब के पढ़ने वाले का क्या मर्तबा होगा, क्या मकाम होगा, उसको अपनाने वाले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले के लिए क्या मकाम मर्तबा होगा? है नहीं। ये कुरान करीम हमारे लिए, जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने जितनी चीजें रखा है, मिसाल के तौर पर उसमें 7 मंजिलें हैं, 14 सजदे, 30 पारे हैं, 114 सूरतें,
540 रुकू है, 6666 आयतें हैं। ये मामूली चीज है, मामूली मालूमात, ये तो हम में से हर एक को होना चाहिए, है नहीं? कितने मंजिल है? 7 मंजिल है। सजदे कितने? 14 सजदे। पारे कितने? 30 पारे। उसमें सूरतें कितने? 114 सूरतें। और रुकू 540 रुकू है। पूरे कुरान में 540 रुकू है और 6666 6666 आयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक आयत, अर्रहमानिर रहीम दूसरी आयत, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन ये भी एक आयत, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये आयत, अलिफ लाम मीम एक आयत। ऐसे ही पूरे कुरान करीम में कितने ये आयतें हैं? 6666 आयतें। तो ये कुरान 6666 आयतों के जरिए से हमको मिला है। 540 रुकू के जरिए से हमको मिला है। 114 सूरतें में जो हमको मिली है, 30 पारों की शक्ल में जो हमको मिला है, 14 सजदों के जरिए से जो हमको मिला है, 7 मंजिल के थ्रू से जो हमको मिला है। इस कुरान करीम को आप अपनाएंगे। इस कुरान में आपको दूसरों की किस तरीके से मदद करना है, एजुकेशन कैसे हासिल करना है, माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना है, बड़ों की किस तरीके से इज्जत करना है, छोटों पर कैसे शफकत करना है, असातिज़ा की किस तरीके से खिदमत करना है, गरीबों के हुकूक, मालदारों से दोस्ती किस तरीके से बयान किया गया है, अपने दोस्तों की क्या मकाम मर्तबा है, अपने भाइयों बहनों के क्या मकाम मर्तबा है, रिश्तेदारों के क्या मकाम मर्तबा है, किनके क्या हुकूक है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, मौत क्या है, हयात क्या है, जिंदगी क्या है, फना क्या है, कब्र की जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ये सफर क्या है, ये हज़र क्या है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? कुरान करीम में मिलेंगी। कुरान को अपनाएंगे, ये कुरान करीम को अपनाएंगे तो आपको इतना बड़ा मकाम मर्तबा मिलेगा आप और हम सोच नहीं सकते। इसके थ्रू, इसके बदले में अल्लाह ताला क्या देगा आपको? जन्नत देगा। क्या देगा? जन्नत, जो हमारे ख्वाबों वाली बात है। आदमी ख्वाब में कुछ अलग देखता है लेकिन वो हकीकत नहीं होता है। दुनिया में जन्नत वैसे ही है, कुछ हमारा दिमाग सोचता है लेकिन सारी चीजें नहीं हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर आप अभी स्टूडेंट, एक टीचर भी बन सकता है, एक ही साथ नहीं बन सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट ही रहेंगे। आपको टीचर बनने के लिए, सर बनने के लिए ये सारे मराहिल तय करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप टीचर सर बनेंगे। आप अगर एमएलए हैं तो इस बस्ती के, इस इलाके के एक ही एमएलए होगा ना। हर एक अगर ये सोचे कि इस इलाके का मैं एमएलए हो जाऊं, हो सकता है नहीं। इस स्टेट के एक ही सीएम होगा, इस मुल्क का एक ही पीएम होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन हर एक ख्वाब तो देख सकता है, मैं बन जाऊं, ऐसा तो सोच सकता है, नहीं बन सकता। दुनिया में आपकी सारी आरज़ू पूरी नहीं हो सकती है। हाँ, एक मकाम ऐसी है, एक जहान ऐसा है जहां आपकी सारी आरज़ुओं को पूरा किया जाएगा। उस मकाम का, उस जहान का नाम है जन्नत। वहां आपकी सारी आरज़ुओं को पूरा किया जाएगा। सबसे कमतर जन्नती को, सबसे आखिरी जन्नती को जो दिया जाएगा, इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा। इस दुनिया में कितनी चीज है, ऐसे ही 10 दुनिया एक कमतर जन्नती को दिया जाएगा। वहां जाने की तैयारी भी कीजिए,
वैसे ही तो जन्नत नहीं देगा ना अल्लाह ताला, ऐसे दे देगा नहीं। किसी चीज को पाने के लिए खोना पड़ता है। एजुकेशन हासिल करने कितने आप मेहनत करते हैं, सुबह सुबह दिन को कुर्बान करना पड़ता है, पानी नहाना पड़ता है, ठंडा पानी नहा करके फिर तैयार होना पड़ता है, फिर दिन भर यहाँ पे लगाना पड़ता है, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक इतनी वक्त की कुर्बानी देना पड़ता है, जब जाकर के आप इल्म हासिल करते हैं। है नहीं, हकीकत नहीं है ना। तो जन्नत में ऐसे फ्री में थोड़ी मिल जाएगा, जन्नत को हासिल करने का कुछ करना पड़ेगा, और वो है अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना। अल्लाह ताला ने जो कहा उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जाना है, ऐसा वैसा नहीं जाना है, उससे बच के रहना, उससे हमेशा इख्तियार करना, माँ बाप को हमेशा खुश रखना, दोस्त अहबाब को खुश रखना, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी जानवर को भी बिला वजह नहीं मारना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। तो इस तरीके से अगर हमने जिंदगी गुजारा तो हमारे लिए जन्नत है, और जन्नत में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके दिमाग में कभी सोचा नहीं होगा, आपके ख्यालात में भी कभी नहीं आया होगा। वो सारी चीजें अल्लाह ताला के अंदर मिलेंगी, सारी आपको क्या चाहिए, किस चीज की आपको आरज़ू, अल्लाह ताला करेगा ख्वाहिश का मांगो मुझसे, अल्लाह ताला आपने हमारा चेहरा रोशन कर दिया, हमने जहन्नम से बचा दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया, सारी चीजें को हमको अदा कर दिया। अब हमें क्या चाहिए और ख्वाहिश करो, क्या ख्वाहिश करो, सारी चीजें मौजूद है, खाने के लिए तरह तरह की नेमतें, जिंदगी बुलाने के सारे आसाइश के सामान, और मेरे खुदाम, मेरे नौकर चाकर, सब चीजें तो मेरे पास मौजूद है। वहां पर सलामत औरत रहे, अल्लाह ताला के तरफ से सलामती, अल्लाह ताला आपको सलाम करेगा। हालांकि छोटों को उसमें बड़ों को सलाम करो, जैसे मैं अभी आया आपको मेरे को सलाम किया, क्यों? आपने मेरी इज्जत की, बड़ा है, हमको सलाम करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वहां पर जन्नत में अलग माहौल होगा, जन्नत में अल्लाह ताला से बड़ा कौन हो सकता है? अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो अल्लाह जन्नतियों को सलाम करेगा, सलाम कौलन मिन रब्बिल रहीम। मेरे बंदो ख्वाहिश करो, अल्लाह ताला क्या ख्वाहिश करे, ख्वाहिश करो, और मांगो क्या मांगते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अगर और अच्छी चीज दूं, हाँ बताइए क्या, तब अल्लाह ताला क्या करेगा, पर्दा हटाएगा अपने दरमियान से और बंदों के दरमियान से पर्दा हटाएगा, अल्लाह ताला को हम देखेंगे। आज हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, इन आंखों में पावर नहीं है देखने, हालांकि अल्लाह हर जगह है ना, हर जगह है। सीसीटीवी सब डरते हैं, पता नहीं देख लेंगे, देखने के बाद हमको सजा मिलेगी। अल्लाह ताला सीसीटीवी की वजह से सब तरफ देख रहा है, सब उसके नजर के सामने हो रहा है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। हमारे नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये जो रब है ना, शहर बोलते इसको, मैं तुम्हारा इतना करीब हूँ, इतना करीब हूँ, लेकिन हमारी आंखों में वो पावर नहीं है उसको हम देख सकें। वहां पर देखें, वहां पर वो पावर वाली आंख अल्लाह ताला हमको अता करेगा। तो अल्लाह ताला जब पर्दा हटाएंगे तो अल्लाह को देखेंगे, ऐसे देखते रहते हैं, किसी हसीन खूबसूरत चीज को देखते हैं, जैसे देखते रह जाते हैं, अल्लाह ताला को ऐसे देखते रहते हैं, कितना खूबसूरत अल्लाह ताला इंसान है कि इंसान देखते रह जाएगा। ये नहीं माने कब मिलेंगे, जब इस दुनिया में थोड़ी तकलीफ के साथ आप अपने अल्लाह के मर्जी के मुताबिक चलेंगे, अपने रसूल के सुन्नतों के मुताबिक चलेंगे, और रसूल ने हमको जो सिखाया है उसको हमें हर हाल में अपनाना है। हमारे रसूल हमारे लिए क्या नहीं, ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये जो जिंदगी मिली है हमारे रसूल के सदक़े से मिली है, हमारे रसूल की सदक़े में ये जिंदगी मिली है।
اور رسول کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا ہے، ایمان ملا ہے. پتا نہیں تو کس گھر میں پیدا ہوتے تھے، کہاں پیدا ہوتے تھے، کس مذہب میں، کس ملت میں پیدا ہوتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم کہ ہمیں آخری نبی کی امت ہی بنایا، ایسے نبی جو قیامت کی ہماری بخشش کروائے، ہم سب کی بخشش کروائیں گے. خوش نصیب رہیں اس نبی میں، اس نبی کے امت میں پیدا ہوئے. ورنہ پہلے کے انبیاء کرام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا، مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہم نے کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے اس کو امت میں پیدا کرنا، پیدا کیا ہے. تو اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد کو سمجھیں. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ عبادت کے لیے. پہلی بات جو میں نے آپ کو بولا، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد عبادت ریاضت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. دیگر مخلوقات ہے وہ بھی عبادت کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہے سوائے انسان. انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. 2% عبادت کرتے ہیں، 2% صرف عبادت کرتے ہیں. معلوم کرو گے ہمارے مساجد کیسے خالی رہ جاتے ہیں. ہماری آبادی کے حساب سے یہ مساجد کم ہیں. ہمارے اوپر نماز فرض ہے لیکن ہم جا رہے نہیں نماز. فجر کی اذان ہو رہی، ظہر کی ہو رہی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی مسجد میں، لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں. ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہے، ہم تسبیح بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ساری چیزیں نماز پڑھ رہی ہے، سارے مخلوقات نماز پڑھ رہی ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں. 2% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 98% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. خدا کا ایسا مت کیجیے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے. جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ دھول، آنکھ میں اگر کچرا آ کر کے گر جائے، کوئی کنکر آ کر کے گر جائے، کوئی چیز آ کر کے تنکا آ کر کے گر جائے، کتنا پریشان ہوتے ہیں، آپ کو مرنے لگتے ہیں. تو ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں تنکا ڈال رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، ہے نا؟ یہی مطلب بنا. اور ایک حدیث میں پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن، جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن، اور جو نماز نہیں پڑھتا بچنا ضروری ہے. اس وعید سے بچنا ضروری ہے. نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں. آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں پر ایک پر نماز پڑھنا فرض ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود نماز پڑھیے، دوسروں کو نماز کی تعلیم کیجیے. میں جماعت والا نہیں شاید یہ سن رہے ہوں کہ جماعت والے ایسے بات کرتے ہیں. نہیں، جماعت والا نہیں، میں ایک ذمہ دار امتی ہوں، اس لیے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں. آپ کو خود نماز پڑھنا ہے، دوسروں کی نماز پڑھانے کی فکر کرنا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ کو خود نیک کام کرنا ہے، دوسروں کو تعلیم کرنا ہے. خود برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. نماز آپ کو بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی پڑھانا ہے. اپنے ساتھ
4 दोस्तों को भी साथ लेकर के जाइए। मसाजिद को आबाद कीजिए, अपने घरों के करीब जो मसाजिद है उनको आबाद कीजिए। बच्चियां अपने घरों में आप नमाज पढ़ो, लेकिन खुदा के वास्ते नमाज मत पढ़ो, नमाज अपने घरों में पढ़िए। और खुदा ना खास्ता हमारे माँ बाप का नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हमको अगर देखेंगे लेकिन तुमको भी शौक पैदा होगा, अरे हम भी नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारा बच्चा नमाज पढ़ रहा है, देख करके हमसे नमाज पढ़ना चाहिए। शर्म आएंगी, कभी ना कभी उनको शर्म आएगी, मेरा बच्चा पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी बच्ची पाबंदी से नमाज पढ़ रही है, मैं नहीं पढ़ने पा रही, मैं नहीं पढ़ने पा रहा हूँ। माँ बाप भी सोचे कि बच्ची नमाज पढ़ रही है, किसी दिन उनको भी शर्म आएगी, अल्लाह ताला से भी तो शर्म आएगी, तो आप माँ बाप को इतना तो कह सकते अपने अब्बा नमाज पढ़िए, चल रहे नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, इतना तो कह सकते हैं। भाई बहनों को कहिए, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी सहेलियों को कहिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ेंगे तो एक जिम्मेदार इंसान बनेंगे। जिम्मेदार इंसान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। नमाज कभी मत छोड़िए। अगर आपने नमाज की पाबंदी कर ली, हर चीज आपका टाइम टू टाइम होगा, आपको यकीन नहीं आ रहा, करके 40 दिन करके देखो, 5 वक्त नमाज 40 दिन पाबंदी से पढ़ो, हर काम आपका टाइम से। चंद बातों पर अमल करेंगे, के सुन्नतों पर अमल करेंगे, जिंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जान से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको इन सब बातों पर अमल कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब कुछ भी सवाल नहीं है, ऐसे ध्यान रहे, सवाल करना भी वो अहम पॉइंट है। हदीस में है अस्वालो निस्फुल इल्म, पूछना आधा इल्म, समझ रहे ना? पूछना तो मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो सामने वाला क्या सोचता हूँ, अगर ये शर्मा करके रखे तो कभी नहीं पूछ सकते। मसाइल फसाइल इन चीजों में आपको आगे बढ़ करके पूछना चाहिए, सामने वाला क्या सोचेगा वो क्या लेना है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, मालूम करना। अगर अभी कोई सवाल आपके दिमाग में नहीं है, आइंदा मैं आऊँ या कोई भी मुनिस्ता भाई पूछिए, उन सवालों को पूछिए, पूछने की आदत डालिए, पूछना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दुआ करिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व सलाम तबारक व तआला। अल्लाहुम्मा इghfir लना व लिवलिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीब व तुजिबु दाअवत मुस्लिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह सबके गुनाह को माफ फरमा, हमारे छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमा, हमारे अपने गुनाह को माफ फरमा, हमारे सारे गुनाह को माफ फरमा, हमारे सारे गुनाह को माफ फरमा। मौला हमने या दोस्तों को की है, या अंदर में की है, या दिल के अंदर में की है, या रात के अंदर में की है, लोगों से दिल की बातों की है, या लोगों के साथ की है। मौला अपने सारे गुनाह से तौबा करते हैं, तौबा कबूल फरमा, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, बद अमाल से हमारी हिफाजत फरमा, नेक अमाल करने पर मजबूर कर दे, बद अमाल ना करने पर मजबूर कर दे। लौल आलमीन खैर काम करने में हमारी मदद फरमा, लौल आलमीन शुरू से हमारी मदद फरमा, हमारे मजबूर को फरमा, हमारे वालिदैन को सेहत अता फरमा, हमारे असातिज़ा को सेहत अता फरमा, हमारे असातिज़ा की उम्रों को अता फरमा। लौल आलमीन जिसके जरिए से इल्म महसूल हासिल हो रहा है, उनकी जिंदगी में, घरों में खैर व बरकत अता फरमा। लौल आलमीन हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस मसाजिद मकासिद की स्कूलों की हिफाजत फरमा। लौल आलमीन इन मदारिस मकासिद मसाजिद और स्कूलों में दिन दिन रात चलो तरफ अता फरमा। यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनमें
العالمین ان کے اندر تقوی عطا فرما، ان کے اندر علم عطا فرما، ان کے ماں باپ جو رقومات خرچ کر کے ان بچوں میں آگے رہے، ان فقیر رقوموں کو قبول فرما، ان بچوں کے اندر دینی اور دنیاوی سارے عطا فرما۔ یا العالمین قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما، بزرگان دین کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق فرما، ائمہ نظام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ مولا جو کچھ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ مسلم عطا فرما۔ یا العالمین اسکول میں ترقی عطا فرما، یا العالمین اسکول کے میں دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے جو انتظام کیا ہے مولا ان کے اس انتظام کو قبول فرما، اس کے ٹکڑے میں انہیں صحت عطا فرما، اس اسکول میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا العالمین ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك